السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فلم، کتاب اور لوگ، اور آج کی کتاب راجہ گدھ. یہ بانو قدسیہ کا ماسٹر پیس ہے، لیکن ناول چونکہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تذکرہ کیے بغیر نہ تو اردو لٹریچر مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی خبردار کا یہ سیگمنٹ جس کا نام فلم، کتاب اور لوگ ہے. ہم نے بلا رکھا ہے آج دو مہمانوں کو. ایک صاحب دور حاضر کے ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں اور پبلشر بھی، اور دوسرے صاحب ایک سنجیدہ اور پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں. اور ہم ان دونوں سے ہی پوچھیں گے کہ آج کا پاکستانی معاشرہ کتاب سے یکسر عاری کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے. پہلے تو بھائی جی میں نے گل دسو نا، انہاں دا قصور کی ہے؟ تم پڑھے لکھے نہیں لگتے؟ میں نے انہی کے بارے میں کہا کہ پڑھے لکھے ہیں. چھڈو تسی ناول ال جاؤ. بانو قدسیہ فیروز پور میں پیدا ہوئی. 1928 ان کا سن پیدائش ہے. آپ کی وفات 4 فروری 2017 کو ہوئی. ویسے تو انہوں نے لاتعداد افسانے بھی لکھے اور ان سے ماخوذ لاتعداد کہانیاں ٹی وی پر ڈرامے کی شکل میں پلے کی گئی. ان کا دوسرا قابل ذکر ناول حاصل گھاٹ تھا، لیکن جو شہرت راجہ گدھ کو ملی وہ حاصل گھاٹ کی قسمت میں نہیں آ سکی. چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بانو قدسیہ کی دوسری سب سے بڑی وجہ شہرت راجہ گدھ تھا. سر پہلی کیڑی؟ پہلی ان کے شوہر اشفاق احمد. ویسے تو اس کہانی میں 4 اہم کردار ہیں. ایک پروفیسر سہیل ہیں، باقی طلباء ہیں، گورنمنٹ کالج کا بیک ڈراپ ہے، اور ایک لڑکی ہے جو بڑی ماڈ اسکواڈ ہے، سیمی اس کا نام ہے، بڑی خوش شکل خوبصورت، اور اس کا ایک کلاس فیلو ہے آفتاب. ان دونوں کا کچھ معاملہ ہے. اور ایک کیریکٹر جو ان سب سے زیادہ اہم کیریکٹر ہے، اور وہ ہے قیوم. یہ انتہائی اہم بھی ہے اور انتہائی تھرڈ کلاس بھی. ایز اے ہیومن بینگ بہت نچلی سطح، بلکہ پاتال میں رہنے والا انسان ہے. نیگیٹیوٹی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اور انتہائی واجبی سی شکل و صورت اور انتہائی بے ضرر سی شخصیت کا مالک ہوتا ہے. اور دل آ جاتا ہے اس کا سیمی پہ. سیمی کا افیئر ہے آفتاب کے ساتھ، لیکن قیوم سیمی کو یہ مخبری کرتا ہے کہ اس نے تو منگنی کروا رکھی ہے. قیوم کسی نہ کسی طرح ان کی محبت کو سیبوٹاج کرتا ہے، اور آفتاب کو انتہائی مجبوری کے عالم میں کوئی خاندانی معاملات اور مسائل کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے. زندگی کی بے ثباتی اور اس سفر کی لا حاصلی سے تنگ آ کر سیمی باقاعدہ سائیکو بن جاتی ہے، اور یہ معاملہ کلمینیٹ ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی اس کی خودکشی کا باعث بنتا ہے. قیوم پے در پے ناکامیاں سہتے سہتے ایک مقام پہ پہنچتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں اگر کسی کو شریک حیات بناؤں گا تو کوئی ایسی عورت جو انتہائی پاک دامن، سچی اور کھری عورت ہو. لیکن اس کی بد نصیبی کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکتا، اور یہ شادی ایک ایسی خاتون کے ساتھ کر بیٹھتا ہے جو اس کے متعین کردہ معیار پہ پوری نہیں اترتی. یہ بھی سائیکو بن جاتا ہے. پھر یہ پیروں فقیروں کے چکر لگاتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ یہ تقریباً لا علاج ہو جاتا ہے. پروفیسر سہیل اسے لے کے ادھر ادھر پھرتے ہیں، لیکن اس کا بنتا کچھ نہیں. ارے ویسے عجیب و غریب جو ہے، سیمی بھی بیچاری سائیکو ہو گئی، خودکشی تک پہنچ گئی، قیوم بھی سائیکو ہو گیا. ہاں جی. یہ آفتاب کیوں بچ گیا؟ آفتاب کہاں بچا، وہ بھی انہی مسائل کا شکار رہا. اس کا اپنا بچہ ذہنی طور پر لاغر اور معذور پیدا ہوتا ہے. اس پوری کہانی کوئی خوش نہیں سی گا؟ نہیں، اس پوری کہانی کا مقصد یہی تھا کہ جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں یہ میٹیریلسٹک معاشرہ ہے. اس کا علاج ایک سرجن کے پاس نہیں، صوفی کے پاس ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ ڈس ایگری کرتا رہا ہوں تھرو آؤٹ، بانو آپا کے ساتھ بھی اور بابا جی کے ساتھ، کہ میں اس صوفیزم جس کو وہ پروموٹ کرتے تھے میں اس کا قائل نہیں ہوں، بلکہ اس کا بہت بڑا کرٹک ہوں. آپ کے خیال میں صوفی نہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں مومن ہونا چاہیے. مطلب اس کے اندر بڑے فلیورز ہیں کہ وہ صوفی بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم بڑا پاورفل ایڈمنسٹریٹر بھی ہے. اگر اسے اللہ کی راہ میں قتال کرنا پڑے تو وہ بالکل نہیں چوکے گا. تو صوفی جسے ہمارے یہاں اکثر پروموٹ کیا جاتا ہے وہ مطلب رہبانیت کے قریب ایک کیریکٹر ہے. وہ ریئل لائف سے ایک طرح کٹا ہوا کیریکٹر ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ورنہ میری خواہش تو ہے کہ پوری ایک ایپیسوڈ، پورا 1 گھنٹہ ہم اسی موضوع پہ گفتگو کرتے رہے. سانو پھر منجی لیا دے، اسی سو جائیے. تو نہیں بولتا پہ، تو داڑھ کٹائی ہے. میں کلا ہی بولی جانا، اپنی عزت کا مسئلہ ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں نہایت پتہ کی بات. یہ بچہ بھی سائیکو ہے. یہ چیک کرو، قیوم دا بچہ تھا. میں آدھا ناول ہی چینج کر لو، تو صرف سائیکو کریکٹر ہی پسند نہیں. ایک اور ناول
नशेब अब्दुल्ला हुसैन का, उसमें भी कैरेक्टर एक कौसर का, वो भी साइको है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दोस्तोफस्की, उसका कैरेक्टर इंतहाई अहम नॉवल, इंतहाई बड़ा नॉवल, उसका कैरेक्टर साइको है। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं, जी जनाब। अब्दुल्ला हुसैन का सबसे बड़ा नावल आपके ख्याल में नशेब था? नहीं, नशेब एक बड़ा गंभीर नॉवल था और बहुत सौ के नजदीक तो ये एक ऐसी कहानी जिसकी समझ नहीं आई आज तक। उन बहुत सौ में मैं भी शामिल हूँ। लेकिन जरूरी नहीं कि हर चीज की आपको समझ भी आए। मैं तो लुत्फ सुखन पे जाने वालों में से हूँ कि अगर किसी चीज को पढ़ के लुत्फ आए, मजा आए, तो कंक्लूजन का और कहानी की बुनत का मामला कमजोर भी हो, बल्कि सरे वर्क से आगे जो पहला सफा उस पे अब्दुल्ला हुसैन ने एक वाकया कोट किया है कि एक बड़ी मशहूर डांसर मॉस्को के थिएटर में परफॉर्म करती है, तो एक शख्स बड़े इनमाक से उसे देखता है और उसे कहता है कि मैं रोजाना बड़े गौर से तुम्हारी परफॉर्मेंस देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आई तुम क्या एक्सप्रेस करना चाह रही हो। तो उसने भी गालबन इसी से मिलता जुलता जवाब दिया था कि इसकी समझ तो मुझे भी नहीं है, मैं भी शायद इसी की मतलाशी हूँ। आपने अब्दुल्ला हुसैन के नॉवेल्स की बात की, सबसे बड़ा नॉवल उनका बिलाशुबा उदास नस्लें हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि अब्दुल्ला हुसैन का एक सेकेंडरी नॉवल जिसकी उन्होंने बहुत ज्यादा कभी खुद तारीफ नहीं की, वो है कैद। बहुत छोटा सा नॉवलेट है, वो उससे गालबन 10 गुना ज्यादा जानदार कहानी है, जोरदार तगड़ी कहानी, ये जो आपको दहला के रखते हैं। अगर ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਗਿੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? बेसिकली गिद्ध है वो कैरेक्टर जो पर्सोनिफाई करता है माशरे की उस कैटेगरी को जो इंतहाई खुद गर्ज है, जो इंतहाई मीन है और गुनाहगार है। गिद्ध के बारे में मशहूर है कि इंतहाई तसाहुल पसंद जानवर है, इसकी इश्तहा खत्म ही नहीं होती, नॉन स्टॉप खाता रहता है, फिर हमेशा मुर्दार खाता है। यानी माशरे का वो तबका जो हराम खोरी पे पल रहा है, उसका अंजाम ये होता है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। फिर जो चीज काबिल तहसीन है, जो मैं समझता हूँ बानो आपा का कमाल है, वो इस एक बारीक नुक्ते को वो कम्युनिकेट क्या करती हैं, किस तरीके से कि रिज़्क़ हराम जब आपकी रगो पै में सरायत करता है ना, तो फिर ये नस्ल दर नस्ल चलता है। आप देख लीजिए 95% केसेस में रिज़्क़ हराम खाकर पलने वाला आदमी अपने बच्चों को भी रिज़्क़ हराम खिलाता है, उसकी अगली नस्ल भी रिज़्क़ हराम पे पलती है। फिर हराम खोरी का ये शाखसाना अल्टीमेट डिजास्टर का सबब बनता है। बड़ी आम बात है भैया, सुनो। मैं सुनता पे होर मैं बोला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। बताएं तुसी तैयारी क्या? ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਖੂਨੀ ਖੰਜਰ। अच्छा, कोई कॉमेडी है ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ। 4 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। इस नॉवल पे? ਅਸਲ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਫ ਦਾ। मुसवदा। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਯਤੀਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ। किसको? ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ 4 ਸਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। अच्छा, यानी खूनी खंजर। जी, अजय तुसी मेरा वो नावल नहीं पढ़ा, चुड़ैल की वापसी। अच्छा, आप तो कह रहे थे कि आपका नॉवल है खूनी खंजर। सर छापिया मैं। अच्छा, मैंने सोचा राइटर भी आप हैं। मेरा पढ़ना तो चुड़ैल की वापसी पढ़ो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। चुड़ैल की वापसी कहाँ से? सर इंडिया पाकिस्तान ते हिजरत की कहानी है। अच्छा, वो कोई कब्रिस्तान तो वापस नहीं सी आई। ये चुड़ैल का एक करैक्टर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। क्यों रोते क्यों रहे? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ। वो क्या? ਇਹ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਤੋਂ ਇੱਟ ਡਿੱਗੀ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, कौन सा? ਰਾਜਾ ਤਿਲੀਅਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜੇ ਯਤੀਮ ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ? ये क्या है? ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਹੈ। पर वैसे हमारे यहाँ किताब भी नहीं कम क्यों होती चली जा रही है? इसमें वैसे कोई शक नहीं कि वाकई शदीद कमी बल्कि बहरान का, क्राइसिस का शिकार है। जबकि पूरी दुनिया में किताब ज्यादा छपने लगी है, किताब बीनी की आदत ज्यादा है, बड़ी है। ये बहाना करते हैं जी कंप्यूटर आ गया है, लैपटॉप्स आ गई हैं, फिल्म एडेप्टेशंस बहुत आ गई हैं। लिटरेचर में कमी हुई है कि फिल्म एडेप्टेशन से लिटरेचर कम पढ़ा जाता है, लोग फिल्म देख लेते हैं। लेकिन जिन्हें लिटरेचर पढ़ने का शौक है, मैं अब भी समझता हूँ कि जो लुत्फ वो किताब से लेते हैं, फिल्म उन्हें नहीं देती। फिर हमारे यहाँ किताब महंगी बहुत है, हम ज्यादातर या तो कागज इंपोर्ट करते हैं और जो यहाँ के लोकल कारखाने हैं वो पल्प इंपोर्ट करते हैं, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। मतलब आप आज किताब सस्ती करके देखें तो उसका रिजल्ट कितना शानदार होता है। और फिर एक और ट्रेजेडी है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस, हमारा सिलेबस किताब बीनी
اور خاص طور پر لٹریچر کو پروموٹ ہی نہیں کرتا, ڈسکریج کرتا ہے کہ اس میں کیا رکھا ہے. یعنی جو معاشرہ صرف انفارمیشن کی بنیاد پر قائم ہوتا چلا جا رہا ہے, لٹریچر کا ایک مقصد ہے, آپ کے اندر کو روشن کرتا ہے, وہ آپ کو جینا سکھاتا ہے, زندگی میں جو تغیرات ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے, فہم میں, ادراک میں اضافہ کرتا ہے, آپ کو آبزرو کرنے کی ایک صلاحیت عطا کرتا ہے. کتنے پین پر آؤ تسی آپس سے گلاں کریے نا. مجھے یہ بتائیں آپ کا کام کیا ہے؟ میرا سر پہلے پرانی کتاباں دا بزنس سی, اس تو علاوہ میں شاعر بھی ہاں جی. یہ فضول بات ہے, اگلی بات. ایک تو میں ناول نگار بھی, پر میں تم دسنا نہیں. کیوں؟ تسے کو کہنا یہ بھی فضول ہے. نہیں, اب جس بندے نے خونی خنجر چھاپی ہو, چڑیل کی واپسی چھاپی ہو, وہ کیا رائٹر ہوگا؟ اجے تو تسی میرا ناول پیاز نہیں پڑھیا. کیا ناول؟ پیاز پڑھو تھوڑی اکھاں وچ پانی آ جائے. ہاں جی, اس کتاب نہ ایک ایک گنڈا بھی دیندے نے. چلو یہ بھی چھڈو, تسی میرا افسانہ پڑھا باقر خانیاں. تو میں ایک سوال کر لوں رائٹر صاحب سے؟ جی جی ضرور. آپ نے کس عمر سے کتاب بھی نہیں شروع کی؟ اصل میں جب میں تھا اس صوفی نے میرے کو پوچھا گل ہے صوفی صاحب, میں اس نے 8 سال دا سی جدو کتاب لکھنی شروع کی تھی. لکھنی شروع کی تھی؟ ہاں جی. یہ تختی تے لکھدا ہوندا سی, کاف تے الف بے کتاب. آپ پڑھنے کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ پڑھتا میں کوئی نہیں, میں صرف لکھدا. وجہ کیا ہے؟ اے تھوڑے ملک دے جننے رائٹر نے یہ پڑھتے تا کوئی نہیں. اچھا. اتنا ٹائم ہو تو لکھن کتھوں؟ اے سارے دا داج لگا اجے سنے تواڈے. ویسے صاحب آپ نے کوئی چیز لکھی ہے, کوئی نسخہ, کوئی تویز, کوئی وصیت؟ تانے بھی پڑھن دا شوق ہے؟ یہ رات نو ڈراؤنیاں شیواں دیکھ کے نا پڑھن لگ پے, اور ڈراؤنیاں شیواں انہاں نو ویکھ کے پڑھن لگ پے. انج بولی دا ہوندا یار, تو بھی مہمان ہی ہے نا. وہ مہمان کوئی نہیں, انہیں بریک چ ڈانس کر رہا ہے. لو جی, اینیاں لمیاں لتاں نال رائٹر میں پہلی باری ویکھے. یار بڑے بڑے دراز قد رائٹرز ہوئے ہیں. کیڑا جی دراز کر دوئے نے؟ بھائی کنہیا لال کپور بہت شاندار افسانہ نگار, پھر عبداللہ حسین بھی 6 فٹ پلس تھے, اور کنہیا لال کپور کا تو ایک لطیفہ مشہور ہے. پطرس بخاری سے ملنے آئے تو یہ اسٹوڈنٹ تھے اور پطرس پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج کے, تو کہتے کنہیا لال جی آپ واقعی اتنے دراز قد ہیں, یا آج مجھ سے ملنے کے لیے کوئی اہتمام کر کے؟ اوے ہاستے لے پتھر دی بتخا. شیکسپیئر کو پڑھا آپ نے؟ تانے پوچھ رہے ہیں. کالج کے زمانے میں پڑھا تھا اس کو. اچھا, انہوں گل کروں تو پہلے ہلانا پڑتا ہے. اچھا اجازت ہوتے اسی ایک فوت کی تے بھی جانا. کچھ دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, آج ابن بطوطہ میں ہم آپ کو لیے چلیں گے میسیڈونیا کے کیپٹل سکوپیے میں. اس کو سکوپیے بھی کہتے ہیں, سکوپیے بھی کہتے ہیں. یہ میسیڈونیا کا سب سے بڑا شہر, اور میسیڈونیا آپ جانتے ہیں الیگزینڈر کی جائے پیدائش ہے, اور اس کے بعد یہ گریس سے الگ ہو گیا. 1991 میں یوگوسلاویا سے بغیر خون کا ایک بھی قطرہ گرائے یہ ملک آزاد ہوا, اور اس کا شہر ہے سکوپیے. دیکھنے میں یہ خوبصورت شہر ہے, لیکن بے ربط اور خاصا بے ہنگم ہے. بے ہنگم اور بے ربط میں نے اس لیے کہا کہ دیکھنے میں یہ بڑا غریب سا ملک ہے. کوئی لمبا چوڑا اس کا جی ڈی پی نہیں ہے, پر کیپٹا انکم بھی لو ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے غریب عوام کا, ٹیکس پیئرز کا $13.5 ملین ایک ہیوج مجسمے پر پھونک ڈالا. اور مجسمہ کیا ہے؟ گھوڑے کی پشت پر بیٹھا الیگزینڈر. تو سر آپ کے خیال میں یہاں کی بیسٹ شخصیت جو ہے وہ الیگزینڈر تھا؟ میرے حساب سے یہاں کی سب سے بڑی شخصیت مدر ٹریسا تھی. واہ, کیا شاندار کیریکٹر تھا, اور اس کے گھر کو انہوں نے یوں پریزرو کیا ہوا ہے جیسے کسی پیر و مرشد کے آستانے کو کرتے ہیں. اور وہ جو میں بے ہنگم اور بے ربط ہونے کی بات کر رہا تھا, یہاں کی جو سائیڈ واکس ہیں جنہیں ہم فٹ پاتھ کہتے ہیں, وہ صرف اور صرف گاڑیاں پارک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یعنی میں اسے کمپیئر کر رہا ہوں کہ یہ یورپی ملک ہے لیکن ہم اس سے بہتر ہیں. اچھا, پھر ایک اتفاقیہ مماثلت لاہور اور سکوپیے میں یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 7 سال سے نان سٹاپ وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ, تزئین و آرائش, اس کی حسن و زیبائش پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور اکانومسٹ چلا رہے ہیں وہاں بھی اور یہاں بھی کہ کھانے کو تمہیں مل نہیں رہا, اور تمہاری تزئین و آرائش ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. پچھلے 5 سال میں گیس کریں کتنا پیسہ لگا ہوگا لاہور پہ؟ کروڑ تے لگا ہونا لازمی.
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ। फिर 2-3 अरब 190 अरब रुपया पिछले 5 साल में सिर्फ लाहौर शहर पे लग चुका ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਪਾਟਾ ਹੈ। ये दरियाए वारदा के किनारे आबाद खूबसूरत शहर है। इस मुल्क का सबसे बड़ा चौक मैसेडोनिया स्क्वायर इसी शहर में है। यहाँ पर वाक़े कला स्कोपिये 4000 साल कदीम है। इसे 2011 में रेनोवेट किया गया, सयाहत के लिए खोला गया और आज बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ का एयरपोर्ट भी इनके पीरो मुर्शिद के नाम से मौसूम है, स्कोपी अलेक्जेंडर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ की एक झील बहुत खूबसूरत और इंतहाई गहरी है, ऑरेड लेक। ये 980 फुट गहरी झील है। सर कोई साढ़े मतलब दी भी शायद दसो इस शहर चो ਇੱਥੇ ਮੰਗਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। यहाँ की अफ्यून बहुत मशहूर है। जुए की लत बड़ी है इस शहर में। गलियों की नुक्करों पे, शहर के वस्त में, इधर उधर चौकों में बड़े ठीक ठाक जुआ खाने बनाए हुए हैं। 2500 शहरियों के लिए एक जुआ खाना मुख्तस होता है। अच्छा जी, अब आए ख्वाबों की तरफ। वाह जी ਸਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਖਾਪੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ब्योरेक यहाँ की एक डेलिकेसी है। ब्योरेक आप मैदे को गूंद के उसकी बनाते हैं पट्टियां। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਡਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾ ਹੈ। सर ਉਹਦੀਆਂ पट्टियां बना लेंगे। पट्टियां बनाते हैं, फिर उनके अंदर स्टफिंग करते हैं, लपेटते हैं उन्हें, मटर, आलू, सब्जियां मुख्तलिफ, उसके समोसे टाइप चीज। ਅੱਛਾ ਬੱਕਰਾ ਬੁਕਰਾ ਸਿਕੰਦਰ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। इसमें जो कीमती चीज है वो पनीर है या बंद गोभी है। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ। फिर जनाब एक डिश है यहाँ पे, टाउचे ग्रावचे। आप यूं समझिए कि लोबिये को लें, ले लिया जी लोबिया से। अच्छा उसे धोएं अच्छी तरह। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਬੀਆ ਧੋ ਦਿਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। अम्मा जी कौन? ਮਦਰ ਟਰੀਸਾ कच्ची हांडी में लोबिया डालें डालिए सर। और पानी में उबालें अच्छी तरह से। फिर इसमें ऑयल डालें, काली मिर्च डालें और प्याज डालें। इसमें सुर्ख शिमला मिर्च डलती है, वाह वाह। सब्ज भी डाल सकते हैं आप, और येलो भी। येलो शिमला मिर्च देखी है ना? जी सर। बड़ी खतरनाक होती है वो हेलोपिनो पेपर होती है वो। मिट्टी की देचकी में ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। उसको अच्छी तरह भूने, फिर वाह वाह। फिर भूनते चले जाएं। ठीक है जनाब, भून लिया? भून लिया सर, भून गई। ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸੀ। बस फिर उसे खाएं। किदे नाल खाइए। ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। हाँ फिर है जनाब तो लंबा। वाह गरम पानी में आटा गूंदें, फिर सूजी को भूनिए। ਕੀ ਭੁੰਨ ਲਿਆ। आटा गूंदते वक्त उसमें काफी बड़ी मिकदार मक्खन की शामिल करें। आटे में हाँ जी, आटे में। फिर इसे मिक्स करें उस भुनी हुई सूजी के साथ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। आहो ये अंडों का हलवा बन रहा है। हाँ, अंडों के हलवे में सूजी भी डल सकती है अगर आप डालना चाहें तो, और बहुत लाजवाब बनती है। ਕੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। इसमें फिर एक बड़ी तादाद अंडों की डालें, खूब मिक्स करके इसको डो बनाएं इसकी, और इसको फ्राई करें छोटे छोटे बॉल्स की शक्ल में या छोटे पीसेस की शक्ल। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਸਰ ਇੱਥੋਂ। जी, ये सबसे लजीज डिश है। ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। जिस बेचारे को कपड़े पहन जोगे नहीं। वैसे ये किसने तुम्हें कहा कि सिकंदर बहुत अमीर था? उसकी कैसे तौहीन की थी डेरियस ने। जी सर। उसे एक बक्स भेज दिया अशरफियों का, सोने के टुकड़ों का भरा हुआ, कि जाओ और अपने अखराजात पूरे करो। नहीं तो जो एडा गरीब सी तो क्यों एडा पंगा ले आए ने। बाकी ये बड़ी हैरान कुन बात, ये जो जंगजुआना ट्रेडिशन थी ना, वो एथेंस की कोई इतनी ज्यादा ग्रीस की, मैसेडोनिया की नहीं थी, ये स्पार्टा की थी। स्पार्टन्स बड़े दलेर जंगजू लोग थे। अब लेकिन वक्त ने साबित किया कि तहजीबें वो जिंदा रहती हैं जो इल्म और फजल में तरक्की करती हैं। उस जमाने में भी मैसेडोनिया फुकरा और गरीब था। ते जंग दा जेड़ा समान है वो कितों लियाउंदे सन। ते लड़दे मूलियां दे नाल सन। कद्दू मार के सिर फाड़ता। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अदाकारा मीरा का कहना है कि जल्द हॉलीवुड की फिल्म साइन करके सबको हैरान कर दूंगी। Of course, I'm coming to the
अंग्रेजी फिल्म कर रही है बाजी, अंग्रेजी। ऐसे आवाज ना कर रहे अच्छा गल सुनो ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ मुश्किल है। फिर आपकी फिल्म के डायरेक्टर कौन है? जेम्स कैमरन जैम नहीं है वो जैम वो होता है जो खाते हैं। अच्छा ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ डिफेंस नहीं रहंदे। तो मैं भी ओकाड़ा रहता हूँ। काफी हम बड़े गरीब लोग हैं ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਣੀ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਸੰਦ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ SMS ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ हेलो हाउ आर यू ये कौन है क्यूट से नौजवान ये अयूब मिर्जा हैं। मैंने क्यूट से कहा है भूत से नहीं ये जो बिल्कुल नजदीक बैठे हैं जावेद इस्लाम साहब है। जवेद साहब आपकी शादी हुई है मेरी भी नहीं हुई ਵੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ खुश नहीं हो रहे उन्होंने साह नहीं आ रहा तो ये आपके फ्रेंड हैं बहुत प्यारे फ्रेंड है मेरे। इन्होंने अपना पिंडा बेच दिया उन्हें आपने अपना दर्जी चेंज कर लिया है वो कौन बताता है तुम्हें इस तरह की बेहुदा बेतुकी बेसरोपा बातें? डिजाइन आपकी चेंज हो गए हैं नहीं नहीं, मेरे तो कोट बहुत सारे खुले हो गए, मेरा बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा बासरे पुराने कपड़े हमें दे दे हम बड़े गरीब हैं ये पिछले से पिछले महीने आप आउटडोर गए हुए थे जी मैं गया हुआ था गिलगित बल्तिस्तान। तो वहाँ पे बेस्ट जगह चक्करपड़िया चक्कर पड़िया इन गिलगित बल्तिस्तान। ऑफ कोर्स वो भी तो पहाड़ी मकाम है ना ਉਹ ਬਾਜੀ ਹਰ ਪਹਾੜੀ ਮਕਾਮ ਗਿਲਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ। इस दफा सबसे खूबसूरत कौन सी प्लेस देखी वही डिस्ट्रिक्ट अस्तौर की एक नई जगह दरियाफ्त की, घुटम सर इन सब जगहों को पीछे छोड़ जाता। बहुत ही हसीन मकाम है और उसका रास्ता इस कदर बेहुदा सड़क है मैं आपको बता नहीं सकता। ये नहीं कि खतरनाक है, बस ऐसी कि आप 10-15 की स्पीड पे जा सकते हैं। इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान है तब तक गिलगित बल्तिस्तान है। और फिर इसकी एक टूरिज्म के हवाले से बड़ी वैल्यू है कि नए नए स्पॉट्स तलाश करने चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना इको टूरिज्म का, इकोलॉजिकली आपको बड़ा सूट करे। कोई बिल्डिंग ना बनाए, वहां पर ज्यादा लकड़ी के ढांचे हो या कैनवस की कैंपिंग हो, इतनी शानदार हो सकती है। ऐसे ऐसे ब्लैंकेट्स, मैं कुछ ब्लैंकेट्स लेकर आया हूँ, वो थे बेच के भी आए बड़े बड़े शानदार ब्लैंकेट्स, बड़े फ्लफी और नर्म, और इंतहाई शदीद सर्दी में भी आपको बाकायदा गर्मी लगेगी। सर जो बहुत शदीद ठंडे इलाके हैं हाँ जी, वहाँ बिजली भी नहीं है, लोग दरख्त ना काटे तो क्या करें? पहली बात तो ये कि बिजली पहुंचाने की कोशिश करें वहां पर। अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है बड़ी शानदार। ये जो जमीन है हमारी, ये अंदर से आपको पता है शदीद गर्म है, इसके अंदर लावे हैं जो फूटते रहते हैं। उस हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाकर लिवेबल किया जा सकता है पूरे माहौल को। इसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। आप उसके लिए एहतमाम करें, इंडिजिनसली प्रोड्यूस करें। ये कोई लंबा चौड़ा मुश्किल काम नहीं होगा। मैं कहता हूँ डॉक्टर समर मुबारकमंद के हवाले कर दो। आप तमाशा देखें कि वो इस प्रोजेक्ट को इंतहाई सस्ते दामों वर्केबल करके दिखाएंगे, लेकिन इस बात का खदशा रहेगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के हत्थे, जब भी समर मुबारकमंद जैसे लोग, जब भी डॉक्टर कदीर जैसे लोग चढ़ते हैं, तो फिर उनका हशर वो होता है जो थर कोल पावर प्रोजेक्ट का हुआ था। सारी मेहनत रायगां गई डॉक्टर समर मुबारकमंद की। और ये भी वो सवाल होगा जिसका जवाब आने वाली नस्लें नवाज शरीफ, जरदारी और इन्हें लाने वालों से पूछेंगी। ਬਾਜੀ ਇਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ये बात ठीक कर रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूं तुम्हारे साथ। बड़ी सेंसिबल बात की है कि उस तरक्की का अगर फायदा मुझे नहीं हो रहा, मेरी आइंदा नस्लों को नहीं हो रहा, तो मैं चंद खानदानों को अमीर से अमीर कबीर बना के बिल्कुल खुश नहीं हूं। एक बड़ी खूबसूरत पोएम है पर्शियन में एक ईरानी शायर की, उसने भी यही कहा कि ऐ ईरान तो बड़ा खूबसूरत सरसब्ज व शादाब है, बड़ा हसीन व जमील है। तेरी नदियां, तेरे झरने, तेरे दरिया खुदा करे बहते रहें, तेरी मिट्टी सोना उगलती रहे, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद अगर मैं गरीब हूँ तो फिर तुम्हारा ये हुस्न जमाल बेमानी है। मैं समझता हूँ ये नज्म बर्रे सगीर के हर शहरी को अपने घर के बाहर चस्पा करनी चाहिए, और जब वोट मांगने इनके नेता आए ना तो उन्हें दिखा देनी चाहिए, ये पढ़ो। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ, बड़ी उम्दा बात थी। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਬੰਦੇ ਘੇਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਛਪਲੂ। खपलू है और वो गिलगित में नहीं है, बल्तिस्तान में है। तो इधर का दरिया कोई है इधर दो दरिया बहुत बड़े, उनका संगम है। दरिया श्योक गिरता है आके दरियाए सिंध में। वो ऐसा हसीन
बल्कि इस कदर लर्जा खेज मंजर है, तुम अगर देख लो तुम्हारी घिघी बन जाए। साडी क्यों घिगी बंदे देखिए जो भी हुआ है, मगर आज तक ऐसी किसी ने घिगी नहीं बनने दी थी। हम गरीबों के पास और है ही क्या, एक इज्जत और घिगी के अलावा। ये सब आपकी कभी घिगी बनती है? ऐसे बर्फबारी आपको अच्छी लगती है? बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। अरे तू स्कीट की थी स्कीइंग ओई ओई हाँ जी की है। तो वो बर्फ पे करते हैं? नहीं, कीचड़ में करते हैं। इतने पहले कैसे पाई एंकर उंकर कोई नहीं। मेरे भाई ने स्कीइंग की हुई है। कहाँ? साडा अपना बर्फ का भट्टा है। तो पता है, एक अहम सियासी शख्सियत ने हस्कीज पाल रखे हैं। इस सियासी शख्सियत ने पाले में आप बताएं ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, बिलावल हाउस है नू, हाँ, बिलावल साहब ने पाले हुए नू। बिलावल साहब के पसंदीदा कुत्ते हस्की हैं। वो इतनी गर्मी जैसे रह रहे थे। रह लेते हैं, लेकिन रखना पड़ता है तरीके से। वो फ्रिज रहने रहे थे। सर वो जो वोल्व्स हैं, मैंने एक टीवी सीरियल में देखे हैं, वो भी हस्की होते हैं। हस्की इन्हीं की किस्म है। वो मेरा ख्याल है आप बात कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की, उसमें है वो वुल्फ है, और वुल्फ ही की आगे नस्ल हस्की है। जर्मन शेपर्ड भी देखें तो उसी नस्ल से है। बेल्जियन शेपर्ड देखने में सबसे ज्यादा खौफनाक है, पता क्यों? वो टोटल ब्लैक होता है। मतलब जर्मन शेपर्ड को आप टोटल ब्लैक कर दें तो वो बेल्जियन शेपर्ड है। वो डायर वुल्व्स हैं और उसका काम बड़ा शानदार है। वो 2-3 दफा अपने मालिक को क्या अच्छा प्रोटेक्ट करता है। एक दुश्मन को तो वो इस तरह मारता है कि उसका विंड पाइप बस्ट कर देता है। सारा कुत्ते ते मिट्टी पाओ। आफ्ताब साहब, मुझे भी शिकार का बड़ा शौक है। अच्छा, जब मैं शिकार पे जाता हूँ ना तो अपना बकरा साथ लेके जाता हूँ। क्या लेके जाता हूँ? बकरा। वो क्यों? क्योंकि वो भी मुफ्त चार लवे। आपको तो पता है पट्ठे कितने महंगे होते। काफी हम बड़े गरीब लोग हैं। आप गरीब लोग हैं। इस वक्त बात अयूब मिर्जा कर रहा वो है। सड़ तो भी गरीब जे। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम क्या समझती हो? सही गल है जी, बैरिया दस्तरखान ना होंदा ने भूखा मार जाना। Continuous Raat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि खजाने की तलाश में कब्रें खोदने वाला जाली पीर मुरीदों समेत गिरफ्तार। हवालात में रिश्वत की पेशकश करता रहा। कब्रें खोदना सर, जी, ये तो बड़ी डरावनी बात नहीं। हाँ जी, डरावनी बात है, बल्कि उससे ज्यादा घिनौनी बात है। और ये कोई नई नहीं, बड़ी पुरानी बात है। जवाब दो, तुझे शेर सुनाना पे हो। ये कंगनपुर का वाक्य है, डिस्ट्रिक्ट कसूर। पीर साहब फरमाते हैं, एक ख्वाब में मैंने देखा कि एक कब्र है जो बकौल उसके उसी के बुजुर्गों में से किसी की कब्र है जो सोने से भरी हुई है। और ठीक 2 दिन बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने धर लिया और फिर पुलिस को लालच देता रहा है कि अगर मेरे साथ ताउन करो तो आधा खजाना तुम्हारा। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था। हाँ जी, 2013 में एक ब्राह्मण को ख्वाब आया कि मंदिर के अकब में एक दफीना है जहां अरबों रुपए का सोना दफन है। वहां की हुकूमत ने औखे सौखे होके 16 लाख रुपया खर्च किया, खुदाई करवाई, कुछ नहीं निकला तो ब्राह्मण को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये हेलुसिनेशंस होती हैं, जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो। इस तरह के फिट्स पड़ते हैं उन लोगों पे जो पीरी मुरीदी करते हैं, अकल्ट से, जादू टोने के साथ उनका ताल्लुक होता है। ओए होए होए। देखो तुसी हनीफ साहब ने ऐनक क्यों लगा रखी है? सर उन्हें ऑपरेशन कराया, होर हनीफ को वेल्डर नहीं हो गया। हनीफ साहब, अब आप ठीक हो गए? बस सर इस हद तक ठीक होया, हम टीरा कोई नहीं कह सकता। जेड़ा कहेगा अन्ना कहेगा। और तुम सुनाओ सर, ठीक हो? हाँ जी, ये क्या कर रहे हो? और सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करना चाह रहे हैं। मेरे साथ बात। एक मिनट सर, एक मिनट। ये बूटा तुम्हारे साथ अब मुस्तकिल बुनियादों पर है। ए मैं गवर्नमेंट को किराए पे ले लिया। ये कब तक रहेगा सिलसिला? सर डॉक्टर साहब ने टाइम दिया 1 महीने बाद वो दोबारा ऑपरेशन करेंगे। हाँ जी, बूटे दा। ये बताओ, ऑपरेशन ठीक हुआ है कि नहीं? तो सर गलत हो गया ना। नहीं तो किया किसने ऑपरेशन, किससे करवाया? बड़ा महंगा डॉक्टर है सर, डॉक्टर तो टाइम ही नहीं सी दे रहा। यार। लैना लगियां सन मरीजों की? नहीं जी, गड्डियां दी। वो क्यों? डॉक्टर साहब ਦਾ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। बूटे मैंने घर भी छड़ के आने हैं। ਬੂਟਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਉਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਟਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। अच्छा ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਾਵੀ। अच्छा। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। सर आपने थाने का पेंट देखा है? हाँ जी, बड़ा खूबसूरत पेंट हो गया। थाना थाना लगता है अब। थाना नया हो गया, हनीफ का ऑपरेशन हो गया,
नहीं हुआ तो मेरा रिश्ता नहीं हुआ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ हनीफ अपनी जगह पे जाओ ना यार। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ और लेके जाओ बूटे। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੈ अच्छा चले, ये फायदा तो हुआ ना कि अब हनीफ दस्त दराजी नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं। ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਟੀਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਮਾਰੇਗਾ नहीं नहीं नहीं, अब नहीं मारेगा। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਧੌਣ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਜੇ अच्छा जी, ये पीर की तरफ आते हैं। ये जो गोरीला नुमा शख्स खड़ा, ये पीर है। ए हनीफ ने कब्रिस्तान छापा मारे सर। अच्छा, पहले इन्हें 8-9 मुर्दे गिरफ्तार कर ले बल्कि उन्होंने जो 3-4 गड्डी च भी पा ले सन मुर्दे। हाँ जी, और उन्होंने कहते से हिले कोई ना। हनीफ बड़ा काबिल आदमी सर। पिछले वाली पुलिस मुकाबला होया हनीफ दी तेजियां ये डाकू ने रल के साडे वाल फायरिंग करन लग पे। और यार बात सुनो, इससे जान क्यों नहीं छुड़वाते हो? किसी और महकमे में भेज दो इसे। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ डेपुटेशन पे चले जाओ कहीं। ਇਹ ਰੂਹ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ इन्हें 6 महीने पहले ईद करा देनी। ਬੂਟਿਆ हाँ जी ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਦਾ ਹੈ सर ना मैं घर जा सकना ना मैं दफ्तर, मेरी तो जान दा अजाब बन गया टीरा। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਵੇਂ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਬੂਟਿਆ हाँ जी ਜਾ ਪੀਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ अच्छा जी। यार ये देखो ना। ਚਲੇ चल चल आगे लग। ਚੱਲ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਉੱਠ ਬਾਨੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪੀਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ये बूटा है। हैं ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਥੱਲੇ ਚਾਬੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ किसी का कोई मसला है तो मुझे बताए। बाबा जी आप सारे मसाइल हल करते हैं। बिल्कुल। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨ ਇਹ ਫਰਾਡੀਆ ਪੀ ਰਹੀ ਇਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣੀ और जिन्नी वो डेस्परेट है उन्हें घर भी लेना जी। हाँ भाई, क्या सोच के तुमने कब्र खोदना शुरू की? दरअसल मुझे ख्वाब आया था जी। अच्छा, इस ठगबाजी के अलावा क्या करते हो? मैं कोई ठगबाजी नहीं करता, मेरा भरा सियासी शख्सियत है, 2 बारी इलेक्शन जितया सी। मुर्शद पाक नूं हर किसी ने वोट पाया। ਤੇ ਚੰਦਾ ਵੀ यूं भी चंदा भी इकट्ठा करते हो? आस्थान ते डब्बा पिया हुंदा है, जांदे जांदे लोग पा दिंदे ने, सानू लोड़ नहीं हुंदी। बाकी आपको क्या जरूरत हो सकती है? आपका आर्कियोलॉजी का काम इतना चलता है। सर वो क्यों होता है? ये जो कब्रें खोदते हैं ना उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। वाह 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 वाह। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਰਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆਨਾ ਜੋਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ और यार कहाँ थी फिल्में? कमाल, मैंने सारी देखी हैं। इन्हें सर डायनासोर की डबिंग की थी सी। इस फिल्म च डायनासोर अपनी आवाज सुन के दौड़ गए। अच्छा पीर साहब, ऐसे पकड़े कैसे गए? सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਡਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਰਕਨ ਹੈ। ये जो बाएं जानिब बैठा है, और मैं संडा हो सकनी हाँ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। गैंग का एक है। ये बाजार च मुर्दे सप्लाई करते हैं। ਲਾਹੌਲ ਵਾਲਾ नहीं नहीं, ये सचमुच का बिजनेस है। ये जो मुर्दे हैं ना, एक मैयत है, उससे बड़े काम लिए जाते हैं। मेडिकल के शोबे में बड़ी जरूरत होती है। एक फिल्म थी बड़ी मशहूर, द फिजिशियन। ये अबू अली सीना के ऊपर फिल्म थी कि किस तरह उसने पैटर्न मसल का उसको स्टडी करने के लिए, अब वहां पर आपको जिस्म चाहिए, इंसानी जिस्म। अब जिंदा जिस्म तो नहीं अपने आप को देगा जी, मुझे काटें और मेरे ऊपर तजुर्बे करें, मेरे ऊपर तहकीक करें। तो फिर मैयत ही एक वाहिद वसीला था। तो इसके और इसके शागिर्द पर मुकदमा कायम किया जाता है कि ये कब्रों की बेहुरमती करते हैं, मुर्दों को काटते हैं और उस पर जादू करते हैं। अब वो जादू टोने का केस बनाकर बेचारों को बहुत ख्वार किया जाता है। इस वक्त भी एक ताज़ा मैयत आपको 1.5-2 लाख में मिल जाती है। ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਈਅਤ ਆ ਬੂਟੇ ਦੀ ਤਾਂ 150-200 ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ पिछले दिनों एक मुर्दा फरोश गैंग पकड़ा भी गया था। हाँ जी, एक नहीं लातादाद पकड़े गए थे। उन्होंने गलती ने जवेद साहब नूं भी बेचता सी। ये कहंदे भी रहे मैं जिंदा जिंदा, अखीर इन्होंने चक फड़ के बगाया। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਸਰ, ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜੇ। और सर एवं बकबक कर रहे हैं। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਬਲੰਗੜੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਇਹਦਾ ਜੀ और जरा बताओ ये धंधा कैसे चलता है? ओ नहीं सर मैं तो कब्र खोदना। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। वो कैसे? ਇਹ ਕਬਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਸਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ वो कैसे? ਹਨੀਫ ਫੜਨ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ झूठा जादूगर, तेनू की पता वे जादू की हुंदा है? और मुर्शिदा नाल मखौल ना करो, साड़ के सुहा कर देंगे। अब तुम मुर्शद के लिए काम क्या करते हो? ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ देखिए जी सबके मसले हल हो रहे हैं, हमारे मसाइल हल हो रहे हैं। ਬਸ ਬਸ
क्या हुआ है? तेरा ब्याह किसने बनने है ਓਏ ਐ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ और बूटिया हाँ जी ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮਸਲਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦੇਖੀ ਦਸ ਹਾਸਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਓਏ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈਗਾ ਵੇਖੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਪੀਰ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਖਾਬ ਆਂਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਓਏ ਆਹੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੂਟੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਆਸੇ ਛੁੱਟੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਛੱਡੋ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਧਾ ਤੁਹਾਡਾ इतना सन्नाटा क्यों है रे बूटे मैंने कब्रिस्तान तो नहीं लाया अल्लाह फिर आ गए चल ले चल मैनू आओ जी अब बूटिया हाँ जी ए बैठा ही इन फड़ के ते अंदर दियो अच्छा जी चल उठ और चल अगे लग लग अच्छा हनीफ में जोर बड़ा है भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम SHO साहब जी आप किस सिलसिले में लेके आए हैं यहाँ पे? बाबा जी सालगिरह से आए वो शरीफ आदमी है पीर है लोगों के ये मेरे साथ उनके फर्स्ट कजन है जनाब की कर देने मैं वाइस चेयरमैन हूँ भाई CUC का। ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ इनकी जमानत हो गई है जनाब रिहा करें इन्हें ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ जी जी ਤੁਹਾਡੀ यूसी ਚ ਹਮਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।